Namaskar students, welcome back. I hope you all are good, fine and safe. So students, as you know, we are doing the revision of chapter number 4 and we already done the question number 1, choose the correct option. Now today we will do the B part, write true for the true statement and false for the false one. Here is the question. We have to write true for the true statement and false for the false one. So let's start our questions. First one is fox is a wild animal. Fox जो है वो wild animal है. It is true or false? Yes, it is true. You have to write true. Fox is a wild animal. Next is a forest is a place that has lots of trees and other plants. Forest एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे trees होते हैं और बहुत सारे other types के plants होते हैं. Is it true? Yes, it is true. So write here true. T-R-U-E, true. Next is lions can live in forest as well as grassland. जो lions होते हैं वो forest में भी रह सकते हैं और grassland में भी रह सकते हैं. तो ये true होगा या false? Yes, it is true. T-R-U-E, true. Next is snakes eat the remains of dead animals. हमने अपने पहले वाले वीडियो में रिवीजन किया ही था चैप्टर का, राइट? तो वहाँ पे क्या लिखा था? Snakes eat the remain of dead animals. Is it correct? No, it is not correct. So here we will write false. F-A-L-S-E, false. Next is crocodiles can live both on land and in water. जो crocodile होते हैं वो land पे भी रह सकते हैं और water पे भी. तो ये correct होगा. Is it true or false? Yes, it is true. So you will write true here. Now students, turn your page. C part, match the following. We have to match with the correct answer, right? First we will match with the correct answers. Here some options are given and we have to match with these correct options, right? First is cold place. So from here we have to match in cold places. Yes, Arctic fox. It is the animal who lives in Arctic fox. So we will match with it. Fourth one. First का answer is fourth. Cold places में कौन रहता है? Arctic fox. Next is elephant. Elephant क्या करता है इनमें से? It's a live both in forest and in grassland. Plant eating animal, flesh eating animal or dig burrows. So elephant is an animal who lives in both forest as well as in grassland. So 2 में आएगा 1, right? Next is squirrel. What does squirrel do? It digs for burrows. Third का answer है fifth one. Digs burrows. Next is crocodile. Crocodile is an flesh eating animal, right? Crocodile is a flesh eating animal. So fourth का answer is 3-1. Last one, deer. Deer is a plant eating animal. तो यहाँ पे हम 5 के सामने लिख देंगे second one. Now next question. Give 2 example for the following. What we have to do here, some sentences are given and we have to give 2 correct examples, right? ये हम पहला भी कर चुके हैं तो वैसे ही भी हमें करना है. First is different natural surroundings where wild animals live. ऐसी different जगह पे जहाँ पे wild animals रहते हैं हमें उन जगह का नाम लिखना है, right? तो first is forest and next is desert. These are the natural surroundings where wild animals live. Next is animals that take shelter in caves. Caves मतलब गुफा. ऐसे animals जो गुफा में रहते हैं. तो कौन से animals गुफा में रहते हैं? Tiger and bears. These are the animals who lives in caves. Next is animals that live in grassland. हमें ऐसे animals के नाम लिखने हैं जो grassland में रहते हैं. So कौन कौन से animals grassland में रहते हैं? Yes, zebra and lion. These are the animals who live in grassland. Next is animals that live in water. ऐसे animals जो water में रहते हैं हमें उन animals का नाम लिखना है
जो वाटर में रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को सबको पता ही होगा कि वाटर में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं। यस, फिश एंड ऑक्टोपस, दीज आर द एनिमल्स हु लिव्स इन वाटर। नेक्स्ट इज एक्सट्रीम एनिमल्स। ये हमने रिवीजन में पढ़ा था कि व्हाट आर एक्सट्रीम एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो हमारे अर्थ पे अभी प्रेजेंट नहीं हैं। एनिमल्स दैट आर नो लॉन्गर प्रेजेंट ऑन अर्थ आर कॉल्ड एक्सट्रीम एनिमल्स। तो विच आर दे? Dodo and dinosaur. These are the animals who are not present on the earth right now. Okay. Now we will do the short question and answers. First question is, what is forest? Forest क्या होता है? So students, I hope you all know. We have done in revision also, right? Forest क्या होता है? So forest is a place that has lots of trees and other plants. फॉरेस्ट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं और बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, राइट? और वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं। सो दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ डेजर्ट? डेजर्ट क्या होता है? नेम वन एनिमल दैट लिव इन अ डेजर्ट। हमें एक ऐसे एनिमल का नाम भी लिखना है जो डेजर्ट में रहते हैं। सो आंसर इज, अ डेजर्ट इज अ प्लेस विच इज सैंडी, receive very little rain and has very few plants, right? डेजर्ट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत सारा रेत होता है, बहुत ही कम बारिश होती है और वहाँ पे बहुत ही कम प्लांट्स देखने को मिलते हैं, राइट? डेजर्ट हम उसे कहते हैं। एंड विच एनिमल लिव इन डेजर्ट? कैमल, राइट? कैमल इज एन एनिमल हु लिव्स इन डेजर्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, What are plant eating animals? कौन से एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट खाते हैं, राइट? वो हमें लिखना है। सो आंसर इज, एनिमल्स दैट ईट प्लांट और द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट आर कॉल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं या फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट खाते हैं उन्हें हम कहते हैं प्लांट ईटिंग एनिमल्स। नाउ स्टूडेंट, वी विल सॉल्व द लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स। Long question and answers. First question is, write about different homes of wild animals. Give one example of each. मतलब कि हमें डिफरेंट डिफरेंट होम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स भी लिखना है और उनका एक एक एग्जाम्पल भी दिया है। सो फर्स्ट होम इज फॉरेस्ट। यहाँ पे मैंने दो ऑप्शन दिया है। आप एक ऑप्शन लिखना चाहते हो तो एक भी लिख सकते हो और दो एग्जाम्पल लिखना चाहो तो दो भी लिख सकते हो। आपको जो भी एक अच्छा लिखे वो आप लिख सकते हो, ठीक है? तो फॉरेस्ट, फर्स्ट होम इज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में कौन कौन रहता है? टाइगर्स एंड बियर्स, दीज आर द एनिमल्स हु लिव इन फॉरेस्ट। नेक्स्ट होम इज ग्रासलैंड। ग्रासलैंड क्या होता है? जहाँ पे बहुत सारा ग्रास होता है, बहुत ही कम प्लांट्स होते हैं, उसे हम कहते हैं ग्रासलैंड। एंड कौन से एनिमल्स रहते हैं? लायन एंड जेब्रा, दीज आर द एनिमल हु लिव इन ग्रासलैंड। थर्ड ऑप्शन इज डेजर्ट। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, जहाँ पे बहुत सारा सैंड होता है। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही किया, राइट? व्हाट इज डेजर्ट? सो कौन से एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं? कैमल्स एंड स्नेक। कैमल्स एंड स्नेक आर द एनिमल्स हु लिव इन डेजर्ट। नेक्स्ट इज कोल्ड प्लेसेस। कोल्ड प्लेसेस मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है उसे हम कहते हैं कोल्ड प्लेसेस। तो कौन से एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं? पोलर बियर एंड आर्टिक फॉक्सेस। Polar bear and Arctic foxes are the animals who lives in very cold places. Next is in water. Next home is in water. Water में कौन कौन से animals रहते हैं? Yes, you all knows fish and whale. Different types of small or big fishes and whale. These are the animals who live in water. Last home, land and water. ऐसे एनिमल्स जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी। सो फ्रॉग एंड क्रोकोडाइल्स आर द एनिमल्स हु लिव्स इन वाटर, राइट? फ्रॉग एंड क्रोकोडाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज प्रे? प्रे क्या होता है? हम आपको याद होगा तो मैंने टेक्स्ट बुक में आपको समझाया था, जहाँ पे लायन जो है वो जेब्रा का शिकार कर रहा था, राइट? तो प्रीडेटर का क्या होता है? प्रीडेटर वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स का शिकार करते हैं,
खाने के लिए, राइट, उसे हम कहते हैं प्रीडेटर। और व्हाट इज प्रे? प्रे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका शिकार किया जाता है फिर बाद में उन्हें खा लेते हैं। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है व्हाट इज प्रे। सो आंसर इज एनिमल्स दैट आर हंटेड एंड ईटेन आर कॉल्ड प्रे। फॉर एग्जाम्पल ज़ेब्रा, मैंने आपके यादी के लिए ज़ेब्रा करवाया है। अगर आपको एग्जाम्पल नहीं लिखना है दैट इज़ फाइन, अगर लिखते हो तो वेल एंड गुड, आपको याद रहेगा कि व्हाट इज प्रे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर सम एनिमल्स रिड्यूसिंग इन नंबर? व्हाट आर सच एनिमल्स कॉल्ड? ऐसा क्या होता है कि जो एनिमल्स हैं उनके नंबर्स धीरे धीरे घटते जा रहे हैं और उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, राइट? So answer is animals that are reducing in number because they are hunted for their body parts and cutting down trees in the forest। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि एनिमल्स का जो है वो शिकार किया जाता है उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के लिए। मैंने आपको बताया था कि जो एनिमल्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनसे बहुत सारी डिफरेंट आइटम्स बनाए जाते हैं और वो जो बहुत कॉस्टली सेल होते हैं, राइट, बहुत ही कीमती होते हैं वो। सो इसलिए उन्हें एनिमल्स का शिकार किया जाता है, इसलिए जो एनिमल्स है वो धीरे धीरे नंबर्स में कम होते जाते हैं। एंड अदर रीज़न इज़ कटिंग डाउन ट्रीज इन द फॉरेस्ट। जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं उनके घर को भी तो हम लोग काट रहे हैं ना, एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं तो धीरे धीरे फॉरेस्ट को भी कट करा जा रहा है, तो फिर वो कहाँ रहेंगे, राइट? तो धीरे धीरे वो भी खत्म होते जा रहे हैं। सो दीज आर द रीजन वाई दे आर बिकमिंग लेस इन नंबर। एंड व्हाट आर सच एनिमल्स कॉल्ड? ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? एंडेंजर्ड एनिमल्स। सच एनिमल्स आर कॉल्ड एंडेंजर्ड एनिमल्स। आई होप यू हैव ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स टू बी सॉल्व, राइट? हम सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर चुके हैं एंड आई होप आप सब रिवीजन अच्छे से प्रिपेयर करोगे और अपनी रिवीजन शीट में सॉल्व करोगे। सो स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू चैप्टर नंबर 5 बोन्स एंड मसल्स। सो ट्राई टू रीड द चैप्टर एंड अंडरस्टैंड द चैप्टर, व्हाट इज चैप्टर अबाउट। ओके, सो till then, bye bye, take care and do revision at your home. Bye bye.